بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقت کی چال اور رب کی حفاظت۔ مکہ کی راتیں گواہ ہیں کہ حق جب روشن ہوتا ہے تو اندھیرے صرف باہر نہیں رہتے، دلوں میں بھی جاگ اٹھتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہر دل تک پہنچنے لگی تھی، سچ بولنے لگا تھا اور باطل گھبرا گیا تھا۔ کفار قریش کھلے دشمن تھے، مگر سب سے زیادہ خطرناک وہ لوگ تھے جو ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور رکھتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں بعد میں منافقین کہا گیا۔ ان میں سے ایک شخص تھا، علم رکھتا تھا، زبان میٹھی تھی، مگر دل حسد سے سیاہ۔ وہ جانتا تھا کہ تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھکا سکتی، الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روک سکتا، اور ظلم اس دعوت کو ختم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے وہ راستہ چنا جس میں اندھیرا، چھپاؤ اور شیطان کی مدد شامل تھی۔ اس منافق نے جادو کا سہارا لیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ایک کنگھی کے ساتھ حاصل کیے اور کھجور کے خوشے میں لپیٹ کر ایک کنویں میں چھپا دیا۔ یہ عمل رات کے اندھیرے میں کیا گیا کیونکہ روشنی میں یہ چہرہ بے نقاب ہو جاتا۔ یہ کنواں بظاہر عام تھا، مگر اس کے نیچے نیتوں کی گندگی دفن تھی۔ کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کے اثر دکھنے لگے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی کام کیا ہے، حالانکہ نہیں کیا۔ جسم پر اثر تھا، لیکن عقل، وحی، نبوت اور کردار پوری طرح محفوظ تھے۔ یہ آزمائش تھی، کمزوری نہیں۔ اسی عالم میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دو فرشتے دکھائے گئے۔ ایک سرہانے بیٹھا، دوسرا پاؤں کے پاس۔ پوچھا گیا، ان کی تکلیف کیا ہے؟ جواب آیا، جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا، کس نے کیا؟ کہا گیا، ایک منافق نے۔ پوچھا گیا، کہاں رکھا ہے؟ جواب ملا، زروان کے کنویں میں، کھجور کے خوشے کے نیچے۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے خبر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور کچھ صحابہ کو بھیجا۔ جب وہ خوشہ نکالا گیا تو اس میں گرہیں بندھی ہوئی تھیں۔ ہر گرہے کے ساتھ ایک ناپاک نیت، ایک حسد، ایک وار۔ اسی سمے اللہ نے وہ کلام نازل فرمایا جو قیامت تک شفا ہے، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی، ہر گرہے کے ساتھ بیماری کم ہوتی گئی، اور ہر آیت کے ساتھ یہ پیغام گہرا ہوتا گیا، اللہ کی پناہ میں آنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سوستھ ہو گئے، اور وہ منافق اپنی چال کے ساتھ رسوا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ منافقت کا سب سے بڑا جواب خاموشی اور اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ حافظ انس کی تلاوت، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू कर दिया था, जिसके असर से साहिब बीमार हो गए. जिब्राइल अमीन ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू किया है और जादू का अमल जिस चीज़ पर किया गया है वो फलां के अंदर है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां आदमी भेजे कि वो जादू की चीज़ें कुएं से निकालें. उसमें ग्रहें लगी हुई थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ग्रहों को खोल दिया. उसी समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तंदुरुस्त होकर खड़े हो गए. और हालांकि जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस यहूदी का नाम बता दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जानते थे, मगर अपने नफ्स के मामले में किसी से इंतकाम लेना आपकी आदत नहीं थी. इसलिए उम्र भर इस यहूदी से कुछ नहीं कहा और ना उसकी मौजूदगी में आपके मुबारक चेहरे से किसी शिकायत के असर ताहे गए. वो मुनाफिक होने की वजह से हाजिर पाश थे. सही बुखारी की रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू किया तो उसका असर आप पर यह था कि कुछ कभी कभी आप महसूस करते थे कि फला काम कर लिया है, मगर वो नहीं किया होता. फिर एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने बता दिया कि मेरी बीमारी क्या है, और फरमाया कि ख्वाब में दो शख्स आए, एक मेरे सरहाने बैठ गया और एक पाँव की तरफ सरहाने. वो सरहाने वाले ने दूसरे से कहा, इनको क्या तकलीफ है? दूसरों ने कहा, ये मशहूर हैं, जादू किए हुए हैं. उसने पूछा, सहरान पर किसने किया है, जादू इन पर किसने किया है? जिसने जवाब दिया, लबीद बिन आसिम ने, जो यहूदियों का हलीफ मुनाफिक है. उसने पूछा, किस चीज़ में जादू किया? उसने बताया, एक कंघे और उसके दांतों में. फिर उसने पूछा, वो कहाँ है? उसने बताया, खजूर के उस काफ पर जिसमें खजूर का फल पैदा होता है, बियर जरवान, एक कुआं का नाम है, वो एक पत्थर के नीचे दबा है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं पर तशरीफ ले जाकर उसको निकाल लिया. फरमाया कि मुझे ख्वाब में यही कुआं दिखाया गया था. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐलान क्यों ना किया कि फ़लाँ शख्स ने ये हरकत की थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने शफा दे दी और मुझे ये पसंद नहीं कि मैं किसी शख्स के लिए किसी तकलीफ़ का सबब बनूं. मतलब ये था कि उसका इलाज होता तो लोग उसको कत्ल कर देते या तकलीफ़ पहुँचाते. मुस्नद अहमद की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मर्ज़ 6 महीने तक रहा. और कुछ रिवायतों में ये भी है कि जिन सहाबा को मालूम हो गया था कि ये काम लबीद बिन आसिम ने किया है तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हम इस खबीज़ को क्यों ना मार दें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया जो हज़रत आयशा को दिया था. इमाम सिल्बी की रिवायत है कि एक लड़का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था. इस मुनाफिक यहूदी ने उसको भला फुसवाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंघा और कछंदान हासिल कर लिया और एक दांत के तार में 11 ग्रहें लगाईं, हर ग्रह में एक सुई. कंघे के साथ उसे खजूर के फल में गिलाफ में रखकर एक कुएं में पत्थर के नीचे दबा दिया. अल्लाह ताला ने ये 2 सूरतें नाजिल फरमाई जिनमें 11 आयतें हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ग्रह पर एक एक आयत पढ़कर एक एक खोलते रहे, यहाँ तक कि सब ग्रहें खुल गईं और आपसे अचानक एक बोझ सा उतर गया. जो लोग जादू की हकीकत से नावाकिफ़ हैं उन्हें आश्चर्य होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर कैसे हो सकता है. खुलासा ये जानना आवश्यक है कि सहर का असर भी असबाब तबिया का असर होता है, जैसे आग से जलना, गर्म होना, पानी से ठंडा होना, कभी कभी तबीयत से भी बुखार जाना. ये विभिन्न किस्म के दर्द और अमराज पैदा हो जाना एक अमृत भी है जिससे अनबिया और पैगंबर भी मुस्तस्नी नहीं. मोमिन का अकीदा है कि दुनिया और आखिरत का हर नफ़ा और नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है. उसकी मशीयत के बगैर कोई किसी को एक ज़र्रा भी नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता. इसलिए दुनिया और आखिरत की तमाम आफात से महफूज रहने का असली ज़रिया सिर्फ एक ही है कि इंसान अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दे और अपने आमाल से उसकी पनाह में आने के काबिल बनने की कोशिश करे. इन दोनों सूरतों में पहली सूरत यानी सूरह फलक में दुनियावी आफात से अल्लाह की पनाह मांगने की तालीम दी गई है और दूसरी सूरत यानी सूरह नास में आखिरत की आफात और बातिनी फितनों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगी गई है. हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि आज की रात अल्लाह ताला ने मुझ पर ऐसी आयात नाजिल फरमाई हैं जिनकी मिसल कहीं नहीं देखी गई. एक रिवायत में है कि तौरेत,
इंजील, जबूर और कुरान में भी इन जैसी कोई दूसरी सूरत नहीं। एक दूसरी रिवायत में हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक सफर में रसूलुल्लाह ने उन्हें मुअव्विजतैन पढ़ाई, फिर मगरिब की नमाज में भी इन्हीं 2 सूरतों की तिलावत फरमाई और कहा, इन सूरतों को सोने के वक़्त भी पढ़ा करो और जागने के वक़्त भी। एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह ने इन दोनों सूरतों को हर नमाज के बाद पढ़ने की तलकीन फरमाई। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह को कोई बीमारी पेश आती तो आप ये दोनों सूरतें पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और फिर पूरे बदन पर फेर लेते थे। जब मर्ज वफात में आपकी तकलीफ बढ़ गई तो मैं ये सूरतें पढ़कर आपके हाथों पर दम कर देती थी, फिर आप अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेर लेते थे। मैं ये इसीलिए करती थी कि मेरे हाथ रसूलुल्लाह के मुबारक हाथों का बदल नहीं हो सकते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन हबीब रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक रात सख्त बारिश और घुप अंधेरा था। हम रसूलुल्लाह को तलाश करते हुए निकले। जब आपको पा लिया तो आपने फरमाया, कहो। मैंने अर्ज किया, क्या कहूं? तो आपने फरमाया, खुल हु अल्लाहु अहद और मुअव्विजतैन पढ़ो। सुबह और शाम 3-3 बार पढ़ लिया करो, ये तुम्हें हर तकलीफ से अमान में रखेंगी। खुलासा ये है कि तमाम आफात से महफूज रहने के लिए ये दोनों सूरतें रसूलुल्लाह और सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम का मामूल थीं। आगे तिलावत है, कुल औजु बिरब्बिल फल्क, कह दीजिए ए मेरे पाक पैगंबर, मैं पनाह मांगता हूं सुबह के रब की हर उस चीज की बुराई से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात की बुराई से जब वह छा जाए, और गिरहों में फूंकने वालियों की बुराई से, और हसद करने वाले की बुराई से जब वह हसद करे। फल्क के लुगवी मानी फटने के हैं, यानी रात का फटना और सुबह का जाहिर होना। जैसे दूसरी आयत में अल्लाह ताला की सिफत आई है, फालिकुल इस्बाह। इस लफ्ज को चुनने की हिकमत यह भी हो सकती है कि रात की अंधेरी अक्सर शर और आफात का सबब बनती है और सुबह की रोशनी उन्हें दूर कर देती है। अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लफ्ज शर 2 चीजों को शामिल है। एक वे आफात और मुसीबतें जो सीधे इंसान को तकलीफ पहुंचाती हैं, और दूसरी कुफ्र, शिर्क और तमाम मासी जो बातिनी शर में दाखिल हैं। गासिखिन इज्जा वक़ब से मुराद पूरी तरह फैल जाने वाली अंधेरी रात है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा के नज़दीक इससे मुराद रात है। रात को खास तौर पर इसलिए बयान किया गया कि यही वक़्त है जब जिन्नात, शयातीन, मोहजी जानवर, कीड़े मकोड़े, चोर और डाकू फैलते हैं, और दुश्मनों के हमले भी इसी वक़्त होते हैं। जादू की तासीर भी रात में ज्यादा होती है। गिरहों में फूंकने वाली आम जादू करने वाली आम हैं, जो डोरों में गिरहें लगाकर उन पर जादू के कलिमात पढ़ती हैं। रसूलुल्लाह पर जादू का वाकया भी इसी सूरत के नुज़ुल का सबब बना। हसद से पनाह इसलिए मांगी गई कि यही पहला गुनाह है जो आसमान में इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से किया, और जमीन पर काबिल ने अपने भाई हाबिल से किया। हाँ, गप्ता यानी किसी की नेमत देखकर यह तमन्ना करना कि यह नेमत मुझे भी मिल जाए, जायज बल्कि पसंदीदा है, जबकि हसद यह है कि दूसरे की नेमत जायल हो जाए, और यही मना किया गया है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.